یہ ہے 7th سینچری کا مکہ۔ اے محمد کے ماننے والوں، اپنے نبی سے کہہ دو کہ یہاں نماز پڑھنا بند کریں۔ اگر رسول اللہ نے ہمیں صبر کرنے کو نہ کہا ہوتا تو آج اس ابو جہل کو ابھی جواب دے دیتا۔ صبر کرو میرے بیٹے۔ یہ وہی دور تھا جب نماز کو اوپنلی چیلنج کیا جا رہا اگر تھا۔ اللہ کو نبی چننا ہی تھا تو کیا یہی ملا تھا جو ہمارے پرکھوں کے طریقوں کو ٹھکراتا ہے؟ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سورہ الحق نازل ہوئی۔ وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ سورہ الحق کے بارے میں بس اتنا ہی جانتے ہیں۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ اسلام کا پہلا ریولیشن تھا، اور جب میں نے بھی اس بات پر ریسرچ کی تو کچھ اس طرح کی باتیں میرے سامنے آئی جو کہ یقیناً آپ کو بھی حیران کر دیں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوئی، اور اس ماڈرن دور میں اللہ تعالیٰ اس آیت سے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ وہ دور تھا جب مکہ میں صرف نفرت نہیں بلکہ ایک غرور، کمنڈ تھا۔ مکہ کے سردار سوچتے تھے کہ ہم ہی امیر ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، تو حق کا بھی فیصلہ ہم ہی کریں گے، باطل کا فیصلہ بھی ہم ہی کریں گے۔ ہماری بقا سب سے پورے مکہ میں کیا یہی ملا تھا اللہ کو؟ ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ دولت ہے نہ طاقت ہے۔ تم سچ کہتے ہو ابو الحکم، نبوت تو صرف امیروں اور بڑے خاندان والوں کا۔ اور جب ان کی باتوں کا اثر نہ ہوا تو پھر انہوں نے دھمکی دینا شروع کر دی۔ کو دوبارہ یہاں سجدہ کرتے دیکھا تو میں اس کی گردن کچل دوں گا۔ لیکن اس دشمنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ یہ بات ہے 610 AD کی، مکہ کا وہ گرم ریگستان۔ مکہ کی گلیوں میں شور تو بہت تھا مگر سکون کہیں بھی نہیں۔ لوگ بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے اور پوری سوسائٹی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر ان سب کے بیچ ایک ایسا شخص بھی تھا جو سچ کی تلاش میں تھا، اور اسی سچ کی تلاش میں وہ غارِ ہیرا جاتے تھے، جہاں پہ جا کے وہ تنہائی میں، بے سکونی میں، سکون میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور وہی سے پہلے بھی خواب آتے تھے، اور خواب بھی وہی آتے تھے جو آگے جا کے سچ ہو جاتے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو مینٹلی ان کو پریپئر کرتا، ان کو تیار کر رہا تھا وہی کے لیے۔ اور پھر ایک رات آئی جس نے تاریخ بدل دی۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ نبوت کی وہ بھاری ذمہ داری تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پہ آ رہی تھی۔ وہی اترنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل دو۔ اور اس ٹائم پہ ان کے ساتھ بی بی خدیجہ تھی جنہوں نے ان کو اس تاری میں دیکھ کے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو بڑے نیک ہو، ایماندار ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، مہمان نواز ہو، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اس ٹائم سے حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ بی بی خدیجہ سب سے پہلی سپورٹر تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہ حالت دیکھ کے بی بی خدیجہ ان کو ایک اسکالر عیسائی کے پاس لے گئی جو کہ توریت اور زبور کا علم رکھتا تھا۔ اس عیسائی نے دیکھا کہ جیسے ہی دروازہ کھل رہا ہے ایک نور اندر آ رہا ہے،
वो फौरन समझ गया। उसने अपनी किताब खोली और हुजूर को देखने लग गए। वो फिर किताब खोली, हुजूर को देखने लगे। जिस तरह बाइबल में लिखा गया था वैसे ही हुजूर देखे जा रहे थे उसको। अल्लाह अकबर। वही फरिश्ता जिब्रील है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। काश मैं तब तक जिंदा रहता जब तुम्हारी कौम तुम्हें यहाँ से निकाल देगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? जो पैगामत आप लाए हैं वो जब भी कोई लाया है लोग उसके दुश्मन बन गए हैं। यानी उनको ये पहले ही पता था कि ये रास्ता बहुत मुश्किल है। पहले तो डर लगता था कोई देख न ले, अब अल्लाह का हुक्म आ चुका है भाई, अब हम बाहर भी इबादत करेंगे। अब नमाज छुप के नहीं हुआ करती थी, नमाज सबके सामने हुआ करती थी। देखो देखो नया मजहब शुरू हो गया। आ गया। इनको लगता है झुकने से ताकत मिल जाएगी। पागल हो गए सब। लोग देखते थे क्योंकि पहली बार कोई बुतों के बगैर झुक रहा था। हर रोज यही झुक झुक कर इबादत करते रहते हैं। मक्का में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बिना बुतों के इबादत कैसे हो सकती है? देखो देखो नया मजहब शुरू हो गया। आ गया। यही है इसका खुदा, मिट्टी में मुंह डालकर बैठा है। देखो शायद अकल आ जाए। अपना मजहब छोड़ दे वरना तुझे यहाँ चैन से जीने नहीं देंगे। या अल्लाह, कुरैश हम गरीबों को बहुत सताते हैं, हमें सहने की ताकत दे, हमारी मदद कर, हमें अकेला मत छोड़। और इसी माहौल में मक्का का सबसे घमंडी इंसान जो कि सजदे को बर्दाश्त नहीं कर देखो इसे, क्या एक शरीफ खानदान का आदमी अपना चेहरा मिट्टी में रगड़ता है? इसने पूरे कबीले की नाक कटवा दी है इस तरह झुककर। ऐ बनु हाशिम के लोगों, अगर अल्लाह को वाकई कोई रसूल चुनना था तो किसी बड़े सरदार को क्यों? अबू जहल सिर्फ इस वजह से नहीं भड़का था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, वो इसलिए भड़का था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुजुर्ग के बुतों को नहीं मानते थे। अब अबू जहल का जुल्म इस कदर बढ़ गया था कि वो ओपनली धमकियां देने लगे थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अपने नबी से कह दो यहाँ नमाज पढ़ना बंद करे। मुझे इस मजलिस की ताकत की कसम है, अगर मैंने मोहम्मद को दोबारा यहाँ सजदा करते देखा। लोग देखते थे मगर कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि अबू जहल मक्का का सबसे पावरफुल शख्स था। अगर रसूलुल्लाह ने हमें सब्र करने को ना कहा होता तो आज इस अबू जहल को अभी जवाब दे देता। सब्र करो मेरे बेटे। पूरे मक्का में क्या यही मिला था अल्लाह को? एक ऐसा शख्स जिसके पास न दौलत है न ताकत है। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के आगे नमाज पढ़ रहे थे, सर सजदे में था और अल्लाह की तरफ ध्यान था। और वहीं पे अबू जहल भी आ गया गुस्से में, अकड़ में। वो आगे बढ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने के लिए। मगर वो जैसे ही पास पहुंचा उसके कदम एकदम रुक गए, उसका चेहरा बदल गया, उसके चेहरे पे खौफदारी हो गई। अपने हाथों से अपने मुंह पे मलने लग गया और उसके कदम पीछे हट गए। क्या हुआ अबू अल हकम? मेरे और उसके दरमियान आग की एक खंदक थी। मैंने ऐसे पर देखे जो आसमान को ढक रहे थे। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाता तो फरिश्ते उसे जला देते। यानी अल्लाह ने खुद अपने नबी की हिफाजत की। देखो, अगर वो बाज ना आएगा तो हम उसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, यानी उस झूठे खताकार की पेशानी के बाल, तो वो अपने यारान मजलिस को बुला ले, हम भी दोजख के फरिश्तों को बुलाएंगे। देखो, उसका कहा न मानना और सजदा करना और अल्लाह का कुर्ब हासिल करते रहना।
अबू जहल समझता था कि पावर पैसों से आती है, कबीलों से आती है, लोगों से आती है, मगर उस दिन वो समझ गया कि असल पावर सिर्फ मोहम्मद के खुदा के पास है। जो अबू जहल एक सजदा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, वही अबू जहल बैटल ऑफ बदर में मारा गया। उसकी लाश को उठाने वाला वो कोई नहीं था, उसकी लाश को कौवे खा रहे थे। अब सूरह अल हक जो है वो अबू जहल के नहीं थी, अल्लाह ताला ने इसे जानबूझकर 2 हिस्सों में रखा है। अब आए थोड़ा इसको समझते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। अब अगर आप पहली इन 5 आयतों को देखेंगे तो अल्लाह ताला पहला जो मैसेज देते हैं वो इंसानियत के लिए देते हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला जो पहली शुरुआत करते हैं इकरा, यानी पढ़ो अपने रब के हुक्म से। यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने हुक्म जो कॉन्सेप्ट पेश किया ना, पढ़ो, खुद इल्म हासिल करो, ये कॉन्सेप्ट जो उस्ताद वाला कॉन्सेप्ट था ना, इसको अल्लाह ताला ने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया। खुद इल्म हासिल करो और पढ़ाई वो जो अल्लाह के करीब ले जाए। अब दूसरी जगह पे अल्लाह ताला हमें इंसान की हमारी हैसियत याद दिलाते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि अलग, यानी कि एक जमा हुआ खून, या एक ऐसी चीज जो माँ के वोम से चिपक जाती है। फिर अल्लाह ताला हमें हमारा बचपन और हमारी कमजोरी हमें याद दिला रहे हैं। अल्लाह कहते हैं कि तुम सोचो, तुम इतने मामूली थे कि तुम्हें जिंदा रहने के लिए भी किसी के सहारे की जरूरत थी। और ये सब चीजें अल्लाह इसलिए बता रहे हैं कि ताकि इंसान के अंदर में कभी गरूर ना आए। फिर अल्लाह ताला अपनी क्वालिटी के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि पढ़ो, यानी तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करीम है। तुम्हारा रब इतना रहीम है कि उसने सिर्फ तुम्हें पैदा नहीं किया, बल्कि उसने तुम्हें जहालत से निकलने का रास्ता भी दिखाया। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत तो ये हमें कि अल्लाह ताला ने हमें सीखने की हिदायत दी, नेमत दी। अब यहाँ अल्लाह ताला उस चीज का जिक्र करें जो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार, जो तारीख बदल देता है, कलम। स्कॉलर्स बताते हैं कि यहाँ पे कलम का जिक्र इसलिए हुआ ताकि इल्म को महफूज किया जाए। अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि तुम जो सीख रहे हो, समझ रहे हो, उसे तुम लिखो और उसे रिकॉर्ड करो। फिर अल्लाह ताला हमें इल्म की असल अहमियत बताते हैं कि इंसान को वो सिखाया वो जो नहीं जानता था। जब हम पैदा हुए थे तो हमारा दिमाग खाली था, पर आज हमारे दिमाग में जो टेक्नोलॉजी है, जो हम सोचते हैं, वो सब हमारे अल्लाह का दिया हुआ है। अब इंसान को लगता है कि सब मेरी मेहनत है, मैंने सोचा है, पर ये सब अल्लाह का रास्ता दिखाया होता है। अल्लाह ने यहाँ पे इल्म यानी कि नॉलेज की बात की थी। अब यहाँ पे अल्लाह ताला उस बीमारी का भी जिक्र कर रहे हैं जो कि अक्सर ताकत से, पैसे से आती है, जिसको गरूर कहा जाता है। यहाँ पे अल्लाह ताला इंसान की बहुत बड़ी गलती की तरफ इशारा कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब इंसान के पास थोड़ा शऊर आ जाए, पैसा आ जाए, ताकत आ जाए, तख्त आ जाए, तो थोड़ा बगावती हो जाता है। वो सब कुछ अपने आप में सोचने लग जाता है, अपने आप को खुदा ही समझने लग जाता है। और वहीं पे अल्लाह ताला एक फौरन रियलिटी चेक देते हैं कि अल्लाह कहते हैं कि तुम्हें लौट कर अपने खुदा की तरफ ही आना है। तुम जितने मर्जी गरूर कर लो, नखरे कर लो, पर तुम्हारी डोर अल्लाह के हाथ में ही। और एक दिन मेरे पास आके तुमने हिसाब देना है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला अबू जहल की मिसाल देके हमसे बात कर रहे हैं कि देखो उस शख्स को जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोका। अभी ये बतलाने क्योंकि तफसील में आता है कि अबू जहल ने कसम खाई थी कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करने नहीं देगा। यहाँ अल्लाह दिखा रहा है कि इंसान का गरूर जब इतना बढ़ जाता है कि वो अल्लाह की इबादत के बीच में भी आड़े आ जाता है। फिर अल्लाह ताला उस जालिम इंसान से 2 सवाल करते हैं। अल्लाह कहते हैं ज़रा सोचो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत पे हैं और वो खुदा से डरा रहे हैं, तो तुम उनको किस हक से रोक रहे हो? और फिर सबसे बड़ी वार्निंग, अल्लाह कहता है कि तुम्हें नहीं पता, अल्लाह देख रहा है। और फिर अल्लाह ताला हमें यहाँ पे असली हमारी हैसियत याद दिलाते हैं कि अगर ये इंसान बात ना आया तो हम इसकी पेशानी से पकड़ कर से खींचेंगे। स्कॉलर हमें इसकी तफसील देते हैं कि अल्लाह ताला ने पेशानी का जिक्र इसलिए किया क्योंकि इंसान का यही दिमाग का हिस्सा झूठे और गलत काम करने की हमें डायरेक्शन देता है।
फिर अल्लाह ताला उसकी झूठी ताकत को चैलेंज करते हैं। अबू जहल कहता था कि मेरी मजालिस में बहुत ताकतवर लोग हैं। ठीक है, फिर तुम बुला लो अपनी पूरी मजलिस को और मैं भी अपने जहन्नुम के फरिश्तों को बुला लूँगा। दुनिया की सारी पावर अल्लाह के फरिश्तों के सामने तिनके के बराबर भी नहीं है। फिर आखिर में अल्लाह ताला इस सारी बीमारी का इलाज बताते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने नबी से फरमाते हैं और हर उस मोमिन से फरमाते हैं कि हरगिज़ नहीं, इस जालिम की बात हरगिज़ ना मानना। और फिर वो रास्ता पे दिखाया जो घमंड से गरूर से निकाल कर राहत और सुकून की जानिब ले जाता है हमें।